Hello everyone, welcome to AptPlace Academy for Civil Services. This is a special video on Fortnite Current Affair, also known as FCA. And this FCA is for the month of October, and this is FCA 2. This is Fortnite 2. We have two FCA, 1 and 2. The one was not released, so whatever important news that were there, I'll be covering this in this edition only. And the FCA covered three important sources. The first is the Hindu, second is the Indian Express, and third is the PIB. So whatever news that was relevant for the entire fortnight, including the one, would be covered in this. So those of you, basically, before I proceed with this, I'll just let you know about the topics. These are the topics that I'll be discussing with you. You can pause this video, you can read the entire topic. We'll be covering everything one by one. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe AptPlace Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Starting with the first news or topic, that is Cabinet clear textile park, something which is very important for your general studies paper 3 also. So recently Union Cabinet ने approve किया for setting up of 7 integrated textile region apparel, जिसको PM Mitra Park के नाम से भी जाना जाएगा. And the total outlay, the budget that was being allocated were 4,445 crore rupees. और ये जो मेगा पार्क्स होंगी, दिस वुड बी अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट. देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड. तो इसमें दोनों तरह की चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ब्राउनफील्ड एज वेल एज द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, स्प्रेड ओवर 5 years. आई होप मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड. जिनको नहीं पता है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कंप्लीटली स्क्रैच से स्टार्ट किए जाते हैं फ्रॉम द बिगनिंग. ब्राउनफील्ड इज मोर ऑफ रिनोवेशन और स्ट्रेचिंग अप सम ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट. तो ब्राउनफील्ड में मोर और लेस रिनोवेशन और एक्सपेंशन होती है, जबकि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीटली न्यू होते हैं. Now, special purpose vehicle that was being used, so the park that would be developed would be using the SPV, और दो kind of SPV रखे गए हैं यहाँ पे, that is development capital support and second is competitive incentive support. So these are the two important capital support that has been there. अगर बात करें capital support की, that aims at helping the infrastructure development, और जो फंड होगी वो 30% होगी प्रोजेक्ट कॉस्ट की, और टोटल आउटले जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की रखी गई हैं, दिस इज फॉर 500 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, और बाकी की जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए 200 रखे गए हैं, राइट. सो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स नीड अ लॉट मोर कॉस्ट, सो इसके लिए 500, बाकी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए 200. एंड अ सेपरेट competitive incentive support will also be provided with 300 crore per park. So these are some of the important provisions under the SPV. तो आपके prelims में भी कुछ important point यहाँ से पूछे जा सकते हैं. Now master development की अगर बात करें, so SPV would be a master developer to set a park in a specified period. और जो park की area है वो 50% would be earmarked by the manufacturing activity, 20% utilities के लिए, और बाकी के जो 10% होंगे वो commercial development में utilize किए जाएंगे. पार्क की बात करें, these are expected to generate 7 lakh direct employment और 14 lakh indirect employment create होंगे. Now other topic, that is drone based vaccine delivery model that has been launched. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है ICMR के collaborations के साथ, where the vaccine delivery would be taking place especially in the northeastern region. So this is a model response and outreach in the northeastern region. और ICMR conduct करेगी initial trial with the help of IIT Kharagpur. So this is a collaborating institutions, right. अगर आपसे UPSC के अलावा किसी और competitive examination में पूछा जाए, so the correct answer would be IIT Kanpur and ICMR. So they would be testing the facility that how the drone can be used to deliver the vaccine in the interior part of the country, specifically the northeastern states. So let's understand what is iDrone. iDrone stand for ICMR Drone Response and Outreach in Northeastern. और पूरा एम है इसका is to facilitate the vaccine delivery in the tough and hard region of the India. Specifically northeastern states में connectivity की काफ़ी issue है, be it railway or the roadways, the connectivity is not proper. So in that particular case, the drone basically would be helping in many ways to get people vaccinated, right? The Ministry of Health has said that India is home to geographical diversities and drone can use to deliver essential to the last mile. और अगर बात करें iDrone की, this has been designated to overcome the challenges by deploying the drone to the hard terrain of this country. Currently,
The drone-based delivery project has been granted permission in Manipur, Nagaland and the Union Territory of Andaman and Nicobar. तो initially जो trial basis पे हैं वो इन particular states और union territories को identify की गई। यूटिलिटी क्या होगी इस ड्रोन सर्विसेज की? सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डिलीवरिंग इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग मेडिसिन, यहाँ पे इसको यूटिलाइज की जा सकती है। कलेक्टिंग ब्लड सैंपल्स, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन क्रिटिकल सिचुएशंस एंड दिस टेक्नोलॉजी मे बी प्रूविंग एज अ गेम चेंजर इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन द हेल्थ केयर डिलीवरी, पर्टिकुलर हेल्थ सप्लाईज इन डिफिकल्ट एरियाज। उसके बाद नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बात करें इसकी, तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली पीएम गति शक्ति एक जो बहुत बड़ी इनिशिएटिव है मल्टी मोडल प्रोजेक्ट्स को लेकर के, ही हैज लॉन्च्ड दिस एंड द पीएमओ हैज सेड दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज फेस्ड मेनी प्रॉब्लम, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन को लेकर के भी काफी इशू है, विच हैज रिजल्टेड not giving the adequate results in the infrastructure sectors. तो पीएम गति will address the past issues, जहाँ पे institutionalization की जाएगी, holistic planning की जाएगी, so that the infrastructure project will get success within the time limit. तो क्या कॉमन विजन रखे गए हैं इसमें? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट दिस प्लान वुड बी एग्जीक्यूटेड एंड डिजाइंड विद द कॉमन विजन्स, और इस मास्टर प्लान के अंदर द प्रोजेक्ट वुड हैव coordination between the ministries and the states, which include some other important projects of Government of India, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, inland water projects, dry and land port, उड़ान, उड़े देश के आम नागरिक. This is to ensure कि affordability of airways is given to all citizens of this country. Textile cluster, defense corridor, electronic parks, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और जो फिशिंग क्लस्टर है उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर जोन्स हैं, दीज ऑल इनिशिएटिव वुड बी इंटीग्रेटेड एंड वुड बी पाइपलाइन अंडर द पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट्स. तो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के जो ये इनिशिएटिव है इसके कुछ 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. इफ यू राइटिंग दिस इन मेंस, आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिखने होंगे. सो फर्स्ट इज कम्प्रीहेंसिवनेस. कम्प्रीहेंसिवनेस का मतलब है कि कोऑर्डिनेशंस होंगी सब मिनिस्ट्रीज के बीच में एंड देयर वुड बी विजिबल एक्टिविटीज इन द क्रिटिकल डेटा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस, राइट. प्रायोरिटाइजेशन की जाएगी वेयर डिफरेंट मिनिस्ट्री वुड बी एबल टू प्रायोरिटाइज अक्रॉस द सेक्टर एंड इंटरैक्शन. द थर्ड इज ऑप्टिमाइजेशंस, जहाँ पे नेस्टर प्लानिंग को असिस्ट की जाएगी विद द वेरियस मिनिस्ट्रीज. जो प्रोडक्ट है दैट वुड बी आइडेंटिफाइड, जहाँ पे क्रिटिकल गैप्स हैं, जो लूप सॉल्व है दैट वुड बी फुलफिल्ड. एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एट वन प्लेस वुड बी सेलेक्टेड, जहाँ पे ऑप्टिमम रूट है जिसकी टाइम और कॉस्ट दोनों कम हो, उस तरह के जो अल्टरनेटिव्स हैं वो भी यूटिलाइज किए जाएंगे. Fourth is synchronization, where there's a lack of coordination in implementation of the project. The ministries and the nodal agency would be cooperating at the fullest so that the success of the project should be implemented at the ground level. Now, PM Gati Shakti will also help to synchronize each department, जहाँ पे different level of governance और बात करें अगर coordinations की, तो ये ensure करने की कोशिश की गई है between the interministries, ministries as well as department and the nodal agencies. उसके बाद फिफ्थ है एनालिटिकल, जहाँ पे इट विल प्लान फॉर द एंटायर डेटा, GIS बेस्ड डेटा इकट्ठी की जाएगी एंड देयर वुड बी 200 प्लस दैट वुड बी इनेबल विद द एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज. उसके बाद डायनेमिक, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं दे वुड नाइट बी विजुअलाइजिंग द रिव्यू, मॉनिटर एंड द प्रोग्रेस ऑफ सेक्टरल प्रोजेक्ट यूजिंग द GIS प्लेटफॉर्म. एंड एज वी नो दैट टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग गवर्नमेंट इन अ लॉट मेनी वेज. जब 2005 में ई-गवर्नेंस लॉन्च की गई थी तो दैट वाज कंसिडर as a landmark journey for the government of India, right? And the progress would be updated on the GI basis on the portal. Now, new defense sector undertaking, जो कुछ नई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर्म की गई है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. तो प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 7 न्यू he has basically inaugurated 7 new public sector undertaking. This is also known as defense public sector undertaking, जो कि अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को विड्रॉ कर लिया था. नो मोर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वुड बी एग्जिस्टिंग इन कंट्री. तो 1 अक्टूबर को ये डिसीजन ली गई थी कि द गवर्नमेंट वुड बी स्क्रैपिंग द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड दे वुड बी अपडेटिंग इट विद द DPU-SU. तो कुछ 7 ऐसे DPU-SUs हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. द फर्स्ट इज एडवांस्ड वेपन एंड इक्विप्ड इंडिया, जिसको AWE के नाम से भी जाना जाता है. दिस इज बेस्ड इन कानपुर एंड इट विल इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल आर्म्स वेपन्स एंड बेसिकली फॉर आर्म फोर्सेज एंड पुलिसेस. सो दिस इज इन UP. तो मोस्टली जितने DPSU किए गए उसमें ज़्यादातर जो DPSU हैं या जितने भी खास करके बात करें इस तरह के 7 DPSUs में, तो 7 में से कम 3 जो हैं वो UP में.
आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफेंस जिनको 30,025 करोड़ रुपीस तक की अभी मिली हुई है, एंड दिस इज बेस्ड इन चेन्नई, राइट. सो लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन किस जगह पे कौन सी डीपीएसयू लोकेटेड है. ग्लाइडर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज अगेन इन कानपुर इन उत्तर प्रदेश, एंड दिस वुड बी मैन्युफैक्चरिंग द टेक्सटाइल. इंटेल ऑप्टल लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, दिस इज बेस्ड इन देहरादून उत्तराखंड, और ये इन्वॉल्व होगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड एपरेटस. उसके बाद है मिन्यूटन इंडिया लिमिटेड, दिस इज बेस्ड इन पुणे एंड इट वर्क फॉर द जनरल पर्पस मशीनरी. यंत्रा इंडिया लिमिटेड, दिस इज again based in Nagpur, manufacturing the components such as seals and ammunitions. उसके अलावा ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड इज अ कंपनी वेयरिंग apparels, expect those of the fur. Now what is the aim of the DPSUs? खास करके इंडिया में इस तरह के जो DPSU की इनिशिएटिव्स ली गई है उसकी तरफ जो मेन मोटिव है इज टू प्रमोट द इनिशिएटिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत, एंड द गोल इज टू मेक जो मिलिट्री पावर है इज टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री पावर, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू डिवोट more into the manufacturing. This should be indigenous in nature, right? So indigenization of industries कोशिश की गई है. The 7 companies would be a major base for Indian military that would strengthen for time to come. उसके अलावा the new structure will overcome the various shortcoming of the existing ordnance factory board. जो बहुत सारी problems, loopholes थी ordnance board factories में, उनको resolve किया जाएगा, और नए DPSU जो हैं वो एक advanced level पे काम करेंगे. Global Hunger Index 2021, as you know that the performance of India is pathetic and they have not performed well, but the government has defended it. I personally feel the government has to do a lot more in terms of eradicating the hunger. So what is this in this report? India has been ranked 101 among the 116 countries, जहाँ पे पहले हमारी रैंकिंग 94 हुआ करती थी, अब वो 101 पे आ गई है, और हमारे से अलावा कुछ और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी हमारे से परफॉर्मेंस अच्छी है. दैट इज 92 फॉर पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की रैंकिंग 76 है और श्रीलंका की 65, राइट. तो ऑब्जेक्शंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ये जो है टर्म्स इन्होंने यूज़ किया दैट इज़ अनसाइंटिफिक. गवर्नमेंट का कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उन्होंने सही मेथडोलॉजी नहीं यूज़ की, बट इसके तरफ से जो जवाब आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, उन्होंने कहा है कि वी डू नॉट यूज़ एनी सर्वे, और बेसिकली हम किसी भी तरह के ओपिनियन पोल के हिसाब से नहीं करते हैं. वी यूज द रियल मेथड्स एंड ऑथेंटिक डेटा बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बाय WHO, यूनिसेफ एंड अदर reputed organization. So GHI has prepared this report by IRIS agency, that is the Concerned Worldwide and German organization, Welt Hunger Life, and they have termed hunger as a alarming. कंट्रीज जिनकी परफॉर्मेंस वर्स्ट है, इंडिया के अलावा 15 ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी और सिचुएशन वर्स्ट है. मैंने यहाँ पे सारे कंट्रीज के नेम मेंशन कर दिए हैं विद द रैंक. यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन रीड इट आउट. नाउ कुछ 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं GHI के. फर्स्ट इज अंडर नरिशमेंट, सेकेंड इज चाइल्ड वेस्टिंग, थर्ड इज चाइल्ड स्टनिंग, एंड फोर्थ इज चाइल्ड मोर्टेलिटी. आपको अंडर नरिशमेंट और मोर्टेलिटी के बारे में पता है. वेस्टिंग ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे लो वेट और लो हाइट होती है एज पर द एज, और ये एक्यूट अंडर नरिशमेंट के अंदर आती है. उसके बाद चाइल्ड स्टनिंग है. इट इज़ द पर्टिकुलर स्टेज वेयर चिल्ड्रन बिलो एज 5 ग्रुप और अंडर एज जो होते हैं उसमें लो हाइट और लो एज देखी जाती है, और ये क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आती है. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. नाउ पैनल टू स्टडी बॉर्डर मैनेजमेंट. As you know that recently MHA has increased the jurisdictions of border security force in some specific state, तो उसको लेकर के एक पैनल बनाई गई है, हाउस पैनल, जो कि स्टडी करेंगी इस फिजिबिलिटी को लेकर के. So the Parliamentary Standing Committee on the Home has decided to study the border management. खास करके BSF जहाँ पे जिनकी jurisdiction को increase किया गया up to 50 kilometers. Initially it was only 15 kilometers. Now it has increased up to 50 kilometers in the states like पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड आसाम. तो एक्सटेंशंस जो है दिस वाज एज आई हैव टोल्ड यू 15 to 50 किलोमीटर्स. इसमें जो पावर इंक्लूड की जाएगी दैट इज सीजर, सर्च एंड अरेस्ट, राइट, इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब. तो होम मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है BSF एक्ट 1968 को. नाउ नो पुलिसिंग पावर दी गई है BSF को, कोई पुलिसिंग पावर नहीं होगी. जहाँ तक FIR की बात है, जो प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस हैं वो अलाउड है. उसके बाद सारी चीज़ें वहाँ के जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशंस होंगी, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होंगी, वो इनको हैंडल करेंगी. एंड दे वुड बी जस्ट जो अभी खास करके बिल पास हुई उसको लेकर के अपोजिशन ने भी
अपनी कंसर्न रेज किए, बट दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट हैज़ टू पास इन द लोकसभा एंड राज्यसभा. सो लेट्स सी हाउ दिस वुड बी डन. और BSF के एक्ट 1939 में ये रिक्वायर किया गया कि पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें डिस्कस करके की जा सकती है. एंड सम पॉलिटिकल पार्टीज हैव रेज्ड कंसर्न ओवर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दैट कॉल्स फॉर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो कुछ कंसर्न्स है रिगार्डिंग द पब्लिक ऑर्डर वर्सेस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और वीकनिंग ऑफ स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. पब्लिक ऑर्डर की अगर बात करें, सो पब्लिक सेफ्टी, पीस और ट्रैंक्विलिटी, इवन द पीस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, जो कि एंट्री 1 स्टेट लिस्ट में आती है. तो यहाँ कहा गया है कि जो स्टेट की पावर है वो सेंट्रल करेल कर रही है बाय using this agencies, but the experts are of the opinion that the BSF should not be blamed for this. This is entirely a government decision. Weakening of the spirit of cooperative federalism, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, तो इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो कहीं ना कहीं वीकन करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को. तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी कहा है दिस डिसीजन इज सेंटर इनक्रोचमेंट अंडर द गाइज ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट. State of Education Report India 2021. This is again something important both for prelims and mains. तो फाइंडिंग बताती है कि हमारे कंट्रीज़ में अभी भी टीचर्स की काफ़ी बेसिकली किल्लत है. एंड द एनालिसिस से दैट द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे and the unified district information system in the education data. तो almost nearly 1.2 lakh single run schools हैं अभी भी कंट्रीज़ में. This is single teacher run school. And overwhelming 89% of the people are there in rural India. तो अभी भी रूरल इंडिया के 89% ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे सिंगल टीचर्स हैं and the education system is not adequate, right? So the report needs that 11.16 lakh additional teachers are required to meet the requirement of the capacity. जितनी भी capacity चाहिए उसके लिए हमें 11.16 lakh teachers चाहिए होंगे. And a team of एक्सपर्ट फ्रॉम द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टिस मुंबई और यूनेस्को ने इस डेटा को प्रिपेयर किया. फाइंडिंग ये बताती है कि जो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 2018-19 की जो डेटा है दैट सेज दैट 1,10,971 सिंगल स्कूल टीचर वर देयर which translates 7.50 of 11.15 teachers employed, right? So this need employing of 95 lakh teachers. And 89% of these teachers are in the rural areas. So ज़रूरत है, we need to take a decision, we need to incorporate more and more teachers in schools so that the standard of education should be evaluated and it should also give student opportunity where they can explore themselves. Now states with single teacher schools की अगर बात करें कौन कौन से ऐसे states है जहाँ पे single teacher schools हैं. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, this is the ranking as per the data which was found by the test. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं. इफ यू राइटिंग दिस इन एसे और इन मेंस पेपर, ट्राई टू यूटिलाइज दिस. वुमेन टीचर इन रूरल एरिया इज अगेन समथिंग विच इज मिसिंग. यहाँ पे बताया गया कि 28% जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे वुमेन टीचर है वर्सेस 63% इन द अर्बन एरियाज. हाउएवर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की बात करें दैट इज प्रिडोमिनेंटली दैट 88% in the rural area. सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो 24% टीचर्स हैं इन रूरल इन वुमेन एंड 53% आर इन अर्बन लोकेशंस. तो जाहिर सी बात है अर्बन में वुमेन के पार्टिसिपेशन अधिक है और रूरल एरिया में काफ़ी कम है. सो दिस गैप need to lessen, the widened gap which is existing at this point of time need to lessen with the government interventions. WHO ने recommend किया है anti-malarial vaccines को. So WHO has recommended that the widespread use of world first vaccine that is RTS-S, AOS जिसको RTS-S के नाम से भी जाना जाता है. This would be used in children in the sub-Saharan African countries. And this is recommended as renovating to fight against the malaria. जो वैक्सीन की डेवलपमेंट है इट वाज डन 30 years बिफोर. ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथ, इन्होंने इसको पार्टनरशिप करके एनजीओ है एक पाथ, दिस इज प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ. दे हैव come up with this technology, this vaccines that would be given to all children in the sub-African countries. Recommendation based on results, almost 1 lakh children पे ये vaccines already try की गई है in countries like Ghana, Kenya and Malawi. And it is being said that it is the safety purpose and the efficacy of this vaccine is high. Although WHO ने कहा है कि the vaccine should be provided in a schedule of 4 doses in children for 5 months at the age to reduce the malaria disease and burden.
तो सब अफ्रीकन सब सहारन कंट्रीज में अभी भी मलेरिया की काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं एंड दिस हैज़ लेड अ लॉट मोर डेथ. US to begin military exercise. इंडिया और यूके के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेज है विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. तो इंडिया हैज़ सेट टू कंडक्ट द एक्सरसाइज. ये यूके क्वीन एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक होगी जो कि कंडक्ट की जाएगी. द डिप्लॉयमेंट होगी बेसिकली इन द इंडियन ओशंस and this is another level of meeting that was held between the joint working group. Cyber capacity building के बारे में भी recent में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसके बारे में बात हुई है. So this is something which is again very important. Exercise Ajia Warrior की अगर बात करें, so this is exercise as a 6th edition of exercise as a joint company level military training as commanded in Uttarakhand. ये पहले हो चुकी है अक्टूबर 20 को. द नेवल एक्सरसाइज डिफेंस ऑफिसर ऑब्जर्व दैट द शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 3rd. अदर एंगेजमेंट की अगर बात करें, पहले भी जो एंगेजमेंट रही है यूएस के साथ, दैट इंक्लूड पैसिक्स विच हेल्ड इंडिया एंड यूके एज अ पार्टिसिपेंट्स. एंड वी हैव अनदर एक्सरसाइज दैट इज रॉयल नेवी कैरियर ग्रुप led by HMS Queen in Elizabeth, right? So this is in the Bay of Bengal. Another India and UK has also the bilateral and logistic support agreement. So UK is again a very important partner for India in terms of trade and logistic and defense. Indian Space Association, this is a short news. Basically, Prime Minister ने recently Indian Space Association को launch किया है. The Prime Minister has launched Indian Space Association as an industry for governing the private companies and aim to supplement the center efforts in commercial space exploration and space-based communications, right? तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स और ये एक्चुअल में आइडिया कब इंक्यूबेट हुई थी. सो इंडियन स्पेस इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें, NSIL है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कमर्शियल आर्म ऑफ द स्पेस, जो कमर्शियल आर्म होती है उसकी, टू हार्नेस इंडियन स्पेस इंडस्ट्री एंड टू टैप बेनिफिट्स ऑफ R&D इन रिसर्च, जो रिसर्च और डेवलपमेंट है इसरो में, एंड टू स्प्रेड द कमर्शियल स्पेस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द प्रोडक्शंस ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी and marketing of the space product. So these are some of the important things that you must know for the entire month. We'll be coming up with the other level of advancement in the next month also. So this was all about the fortnight current affairs that we have. We have a lot more other initiatives like daily news editorial analysis, PIB, MPR and the gist of Yojana and Kurukshetra. So do check it out. You can read our monthly current affair magazine IS Gazette from our website. So this was all about the news. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching.